Hello students, I hope you are all well. Okay, then last chapter for a course of half yearly is linear equation, that is chapter number 6. Okay, and once again, the last exercise of this chapter will not be coming in your exams. As I have repeated again and again, it has been cut as the 30% reduction in your syllabus. Okay, so we'll start with the linear equation. What is a linear equation? Linear equation, okay, linear equation is a relationship between a variable and a constant. Okay, first of all, let us learn about what is an equation. Okay, linear equation word is composed of two words, linear and a equation. Let us learn what is a equation is. So write down an equation. An equation is a condition is a condition that two variables, two expressions are equal. Okay, so I have used this photo. Okay, this is the photo of a weighing scale, तराजू की फोटो है. ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि इस साइड 1 किलो 2 किलो 3 किलो का कुछ आयरन का बाट रखते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास कंटेनर में वॉट एवर द थिंग वी रिक्वायर, चीनी नमक दूध, सॉरी दूध तो नहीं रखता कोई, चीनी नमक आलू गाजर जो भी रखते हैं उसका वेइंग करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. ओके, आप लोग कभी भी मार्केट गए हो तो यू माइट हैव सीन दिस एंड यू विल आल्सो हैव सीन दैट बेस्ड ऑन दिस वेइंग स्केल, यहाँ पे बीच में वेइंग स्केल होता है, उसके बेसिस पे द शॉपकीपर डिटरमाइंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही चार्जेस यू सम मनी. ओके, तो आपके पास 1 किलो है तो 1 किलो का वेट इधर रखते हैं एंड 1 kg वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज पुट इन दिस कंटेनर. तब तक पुट करते रहते हैं अंटिल व्हेन दिस वेइंग स्केल इज अपराइट, जब ये वेइंग स्केल एकदम स्ट्रेट हो जाता है और तब तक हमारे पास जो है वेट दोनों साइड बराबर हो जाता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड. ओके, देयर इज अ एक्सप्रेशन, प्री डिटरमाइंड एक्सप्रेशन इन दिस पार्ट and there is some नॉन प्रीडिटरमाइंड एक्सप्रेशन इन दिस पार्ट. धीरे धीरे करके इसका वैल्यू कम ज्यादा करते हैं सो दैट हमारे पास LHS में LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, RHS इन राइट हैंड साइड. LHS that is left hand side and RHS that is right hand side. दोनों तरफ जो है वेट बराबर होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट मेंट टू बी एन इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन क्या है? फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1. जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर इक्वेशन मींस these two expressions should be some algebraic expression. Okay, तो लीनियर इक्वेशन के लिए you can modify this definition as an equation. An equation is a condition that two algebraic expressions are equal. You can define linear equation as an equation is an condition that two algebraic expressions are equal. Okay, now there is something left hand side, there is something right hand side. All the things written at the left side of the equal to are left hand side things, all the things written at the right hand side of the equal to are right hand side things. Okay, there are some more examples as provided in your book. This is a game of seesaw, you might have played it. Okay, अब यहाँ पे क्या है, the weight of this girl in the black is more than the weight of this boy in the blue. That is why the girl is downwards and the boy is upwards. ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा बच्चा भी बैठ जाता है तो ये दोनों एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे. ओके, मगर उसमें कोई मजा नहीं है. द वेट ऑफ वन पार्टी शुड बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द सेकेंड पार्टी, तभी सीसॉ खेलने का मजा आता है.
Okay, this is another example. This is a comparison of price. Okay, मान लीजिए suppose you have 1 kg of banana for 20 rupees. मिलता नहीं है मार्केट में, मगर मान लेते हैं 1 kg of banana cost rupees 20 and 1 kg of apples cost rupees 80. Suppose in certain condition, in certain market, 1 kg of banana costs rupees 20 and 1 kg of apples cost rupees 80. ओके, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि कितना केजी बनाना खरीदे और कितना केजी एप्पल खरीदे कि दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है? हाउ मच बनाना शुड आई परचेज एंड हाउ मच एप्पल शुड आई परचेज कि दोनों का प्राइस जो है वो बराबर है? ओके, तो मैं क्या करूंगा, आई विल बाय 4 kg ऑफ बनाना, ठीक है, एंड 1 kg ऑफ एप्पल, और मेरे पास दोनों का प्राइस जो है बराबर है. दैट मीन्स 4 into bananas, 1 into apples, the price will remain same. तो यहाँ पे मैंने क्या है कि इक्वेशन फॉर्म की है कि 4 किलो एप्पल और 4 किलो बनाना एंड 1 किलो एप्पल अगर मैं परचेज करता हूं तो मेरे को सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा. ओके, 4 किलो बनाना मीन्स 4 kg, 4 into 20. 4 किलो बनाना मतलब 4 into 20 रुपीज पे करना पड़ेगा. दैट विल बी 80 रुपीज. And 1 kg apples means 1 into 80 kg, that is again 81 into 80 rupees, that is again 80 rupees. तो दोनों ही केस में आपको 80 रुपीज पे करना पड़ेगा. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी फॉर यू. ओके, आपके पास जो एक्सरसाइज है वो इसी तरह की है. आपको कुछ इक्वेशंस देखना होगा, आपको डिटरमाइन करना है वेदर दे आर प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस और नॉट, या फिर आपको कुछ इक्वेशन दे रखा होगा, आपको डिटरमाइन करना है वेदर दे आर वन वेरिएबल इक्वेशन और नॉट. ओके, लीनियर इक्वेशन कैसे होती है, जिसका पावर, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है. वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है. ओके, और उसके अलावा देयर आर सम क्वेश्चंस कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बेस्ड ऑन दोस स्टेटमेंट यू हैव टू प्रोड्यूस अ इक्वेशन. उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक इक्वेशन बनानी है. कैसे बनाएंगे, वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चंस. एंड अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यू आर ऑलरेडी गिवन अ इक्वेशन, और उस इक्वेशन के बेसिस पे यू हैव टू फॉर्म अ स्टेटमेंट. Okay, so we'll try a few questions and then I will leave you with the homework. First of all, question number one. Question number one is, which of the following is not correct statement for 2p minus 5 is equals to 11? This is the equation. You are given 4 statements. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. First statement is, if 5 is subtracted from 2, if 5 is subtracted from 2, 2p, we get 11. we get 11. क्या हो रहा है, अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2p से तो आंसर आ रहा है 11. यहां पे भी यही हो रहा है, 5 is being subtracted from 2p, 2p में से 5 माइनस किया, इक्वल टू आंसर आया 11. तो ये तो सही स्टेटमेंट है, इस इक्वेशन पे लगाया जा सकता है. बी स्टेटमेंट देखते हैं. इफ 5 is subtracted from a number p from p, the result is 11. रिजल्ट इज 11. क्या कह रहा है कि अगर p में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर 11 है. परंतु हमारे पास ये इक्वेशन तो नहीं है, हमारे पास तो 2p में से 5 सब्ट्रैक्ट कराना है. इसका मतलब b जो है इनकरेक्ट. ओके, b जो है इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है. बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं. c is 2p is 11 more than 5. 2p is 11 more than 5. कहने का क्या मतलब है कि अगर 2p में से 11 माइनस करूंगा तो आपको 5 मिलेगा.
2p में से 11 माइनस करूंगा तो आपको 5 मिलेगा। अब क्या करो, इस 11 को तो आरएचएस में भेजो और इस 5 को एलएचएस में भेजो, ठीक है। और हमको पता है पुरानी क्लासेस से कि अगर किसी भी टर्म को एलएचएस से आरएचएस में भेजते हैं या आरएचएस से एलएचएस में भेजते हैं तो उसके आगे का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2p माइनस 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +5 था वहां जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, और 11 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही इक्वेशन हमको स्टार्टिंग में भी दे रखी थी। लेट्स टॉक अबाउट डी पार्ट। तो इसका मतलब इक्वेशन सी जो थी वो भी करेक्ट थी, करेक्ट स्टेटमेंट था। डी पार्ट इज डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5 इज 11। डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5, 2p में से 5 माइनस करो, दैट इज डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5, और ये 11 के बराबर है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चला देयर आर मोर देन वन वेज टू राइट डाउन एनी स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से उसे लिख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following is not a linear equation? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। x square is equals to 1, 2x is equals to 5, m plus n equals to 1, and y minus 1 equals to 0. You are given these four options. We have to determine which of these four options is not a linear equation. लीनियर इक्वेशन क्या कहा था? अगर पावर वेरिएबल की 1 है, और पिछले चैप्टर में आपको समझाया है कि वन वेरिएबल पावर अगर 1 है तो पावर लगाना जरूरी है। तो पावर अगर वेरिएबल की 1 है तो वो लीनियर है, और उससे ज्यादा बड़ी पावर हो गई तो वो और कुछ हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी पावर 1 का है, ये भी पावर 1 का है, ये भी पावर 1 का है, यहाँ पे पावर है 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। We have to determine which of the following is not a linear equation in one variable. इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है और वन वेरिएबल का नहीं? मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो वो भी रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर 1 से ज्यादा हो, वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा हो, वो भी रिजेक्ट कर देंगे। सो आपके पास पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। एक ही वेरिएबल है, पावर भी 1 है, चलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0, एक ही वेरिएबल है, पावर ही 1 है, चलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन इज 3n माइनस 4m। दो वेरिएबल आ गए, एक तो m आ गया, एक n आ गया, n और m दो वेरिएबल आ गए हमारे पास। इसका मतलब ये जो है ना, ये लीनियर इक्वेशन तो है मगर वन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है। लास्ट वन इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या है? केवल x। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जंप कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको होमवर्क बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपके होमवर्क रहेंगे। ओके, so starting complete question number 4, complete question number 5 and complete question number 6. Question number 7 is, हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड वी हैव टू फॉर्म अ इक्वेशन रिलेटेड टू दोस स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोहन्स फादर्स एज is 3 times the age of Mohan.
The sum of their ages is 64. Is 60. ओके हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड बेस्ड ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स वी हैव टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। ओके तो ध्यान दीजिए सभी लोग, बेटा ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आपके पास दो लड़के हैं, एक राम और एक श्याम। मैंने आपको बता दिया कि राम और श्याम की एज का सम, राम और श्याम की एज का सम 30 इयर्स है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राम और श्याम की जो एज है उसका सम 30 इयर्स है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि राम की एज जो है दैट इज 10 इयर्स, तो श्याम की एज क्या होगी? इजी इनफ, बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 30 में से 10 माइनस करेंगे, 20 आंसर बता देंगे। ठीक है, इसी तरह का कार्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं लेट मोहन्स एज बी एक्स ईयर्स। हम मान के चलते हैं कि मोहन की उम्र जो है दैट इज एक्स। ओके अब क्या है, मोहन की उम्र प्लस उसके फादर की उम्र जो है 64 के बराबर। अब मोहन की उम्र है एक्स और फादर की उम्र हमको पता नहीं, तो फादर की उम्र क्या होगी? 64 माइनस एक्स। आई क्या बात समझ में? सो एज ऑफ मोहन्स फादर is equals to 64 minus x years. ओके तो ये तो हमें सेकंड स्टेटमेंट से मिला, दोनों की उम्र के बारे में पता चला। एक की उम्र हमने x मानी, दूसरे की 64 माइनस एक्स। ओके मोहन्स फादर एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ मोहन। अब इक्वेशन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन के पिताजी की जो उम्र है वो मोहन की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। मतलब कि इफ यू मल्टीप्लाई 3 टू द एज ऑफ मोहन, अगर मोहन की एज में आप 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोहन के फादर की एज के बराबर आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बी पार्ट। B part is Neetu's father is 61 years old. Neetu's father is 61 years old. He is 1 year older than 2 times Neetu's age. ओके तो हमको इसका इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे नीतू के पिताजी की उम्र तो हमको दे रखी है, नीतू की उम्र के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट नीतूज एज बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं कि नीतू की जो उम्र है वो है एक्स। ठीक है तो इक्वेशन क्या बता रहा है, ही इज 1 ईयर ओल्डर देन 2 टाइम्स नीतू। नीतू के पिताजी की जो उम्र है दैट इज 61, दैट इज 1 ईयर ओल्डर, 1 साल बड़ी है किससे? 2 टाइम्स द नीतू। नीतू की एज में 2 मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा प्लस 1 करो तो उसके फादर की उम्र आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर। नीतू की जो एज है हमने x मानी है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 के साथ क्या लिखा हुआ है? टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ही इज 1 ईयर ओल्डर, वो 1 साल बड़ा है किससे? 2 टाइम्स द एज ऑफ नीतू। नीतू की एज के 2 टाइम्स से।
तो नीतू की एज थी x ईयर्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हुआ, उससे +1, तो ये हो गई नीतू के फादर की एज। फादर की एज हमको दे रखी है 61 ईयर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। C part is in an isosceles triangle. To do C part, you should already know what an isosceles triangle is. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice the base angle. The vertex angle is twice the base angle. Okay. नाउ हमारे पास क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल और बेस एंगल की बात करी जा रही है। तो लेट मी रिमाइंड यू व्हाट आर वर्टेक्स एंगल एंड व्हाट आर बेस एंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इट इज सच अ ट्राइंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स बराबर है। यहाँ पे ये जो रेड वाली साइड्स है, ये दोनों साइड्स का लेंथ बराबर है। सो फॉर दिस ट्राइंगल ए बी सी, इसकी साइड्स ए बी और ए सी बराबर है, एज वेल एज एंगल बी और एंगल सी भी बराबर है। एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल एंगल्स तो कहलाते हैं बेस एंगल, और ये तीसरा एंगल कहलाता है वर्टेक्स एंगल। Okay, so this is about isosceles triangle. Let us move on with the equations. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice the base angle. आपसे कह रखा है कि वर्टेक्स एंगल जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एंगल आ जाएगा। तो यहां पे मैं लेट करता हूं, लेट वर्टेक्स एंगल इज इक्वल्स टू x, बी x। वर्टेक्स एंगल को x माना तो बेस एंगल क्या हुआ? क्या कह रखा है? वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल। वर्ट सॉरी 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 समझ गया मैं। आप लेट करेंगे कि बेस एंगल जो है वो x के बराबर है। यू विल लेट दैट बेस एंगल इज इक्वल्स टू x। तो बेस एंगल अगर x के बराबर है तो क्या कह रखा है? योर वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल क्या है? बेस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, आपको हिंट में बुक में दे भी रखा है, बाकी आपको पता भी होना चाहिए, दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे, आपके पास हमेशा 180 डिग्री आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल ए का वैल्यू है आपके पास, एंगल ए इज योर वर्टेक्स एंगल, तो 2x, एंगल बी इज योर बेस एंगल, एंगल सी इज आल्सो योर बेस एंगल, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको और सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, आंसर टिल हियर इज सफिशिएंट। यहां तक जो आप आंसर निकाल लाए वो अपने आप में सफिशिएंट। ओके, सो दिस इज वी हैव यूज्ड, हमने क्या क्या यूज किया? जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके बेसिस पे वी हैव लेट द एंगल्स, और उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की टू फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशन। आप ध्यान देंगे बेटा इस बात पे कि अभी तक जो भी इक्वेशंस बनाई है हमने वो सारी की सारी लीनियर है, उनमें डिग्री 1 है और सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस। ओके, एक ही वेरिएबल। क्वेश्चन डी इज अ फ्रूट सेलर sells apples in 2 types of boxes.
apples in two types of boxes. One small box and one large. A large box contains 6 small boxes. Six small boxes plus 3 loser. If the number of apples in large boxes if the number of apples in large box is 75, form an equation giving number of apples in each small box. ओके, ये तो हमारे पास क्वेश्चन है। तो बेटा समझते हैं क्या है कि एक जो फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला है, वो दो तरह के डिब्बों में एप्पल्स बेचता है। एक तो छोटा डिब्बा है, एक बड़ा डिब्बा है। अब बड़ा डिब्बा इतना बड़ा डिब्बा है कि उसमें 6 तो छोटे डिब्बे समा जाए, प्लस 3 और ऊपर से सेव रख दो। मतलब कि 6 तो छोटे छोटे डिब्बे आप रख दो सेव के, और ऊपर से 3 सेव और रख दो। ठीक है, जैसे कि आपका कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक आता है ना, तो कैडबरी के सेलिब्रेशन पैक में इतनी बड़ी चॉकलेट नहीं आती। उसमें क्या एक जेम्स का पैकेट आता है, एक मंच आती है, 2-4 कैडबरी की चॉकलेट आती है, डेयरी मिल्क आती है, इस तरह से। तो क्या रहता है कि एक बड़ा डब्बा है, उसमें छोटी छोटी चॉकलेट्स मिलती है। तो इसी तरह से फ्रूट सेलर ने 2 डब्बे डिजाइन किए हैं। छोटे डब्बे में जितने एप्पल्स आ रहे उतने आ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर बड़े डिब्बे में 6 तो छोटे डिब्बे आ जाएंगे। छोटे डिब्बे के बराबर सेव नहीं रख रहे, छोटे डिब्बे ही रख दे रहे, और उसके ऊपर से जगह बच जाती है, 3 एप्पल और टिका देते। ओके, इफ द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द लार्ज बॉक्स इज 75, बड़े वाले बॉक्स में टोटल 75 एप्पल्स आते हैं, तो हमको ये बताना है, सॉरी, हमको एक इक्वेशन निकालनी है जिसमें हम छोटे बॉक्सेस में कितने एप्पल्स हैं ये दिखा सकें। तो देखो जरा क्या करोगे आप। सबसे पहले तो लेट करोगे, लेट करना बहुत जरूरी है। लेट नंबर ऑफ एप्पल्स इन स्मॉल बॉक्स, number of apples in small box be x। ठीक है, तो क्या है कि बड़े वाले बॉक्स में कितने एप्पल्स आते हैं, 75। या फिर ऐसे कहो कि बड़े वाले बॉक्स में 6 तो छोटे वाले बॉक्स आते हैं, प्लस 3 एप्पल आते हैं। तो 6 छोटे वाले बॉक्स आते हैं, मतलब 6 इंटू नंबर ऑफ एप्पल्स इन स्मॉल बॉक्स, उसमें 3 ऐड कर दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 75 के बराबर एप्पल्स हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। In the same manner, you can also try question number 4, question number 4 और 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी तरह के हैं। आई होप यू कैन फॉर्म द इक्वेशन फॉर दोस। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना आसान है,
फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक बार प्रैक्टिस में कर लेना वापस से, ताकि आपको याद आ जाए। ओके, अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is write each of the following equation in statement. आपके पास ये जो इक्वेशन है इन्हें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। इसके दो पार्ट मैं करके बता रहा हूं, बाकी के दो पार्ट आपसे खुद से करिएगा। लेट अस टेक फर्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट इज m minus 4 equals to 1। बहुत ही सिंपल है, क्या हो रहा है, m में से 4 माइनस करने पे आंसर 1 आ रहा है। 4 is when 4 is subtracted from m the result is 1। जब 4 जो है m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान। अगला देखिए, डी पार्ट देखते हैं। x अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। ओके, क्या है, x अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। सीधा सीधा करते हैं। When 3 is added, जब 3 ऐड हो रहा है in x upon 4, x divided by 4, or we can say 1/4 of x, then the answer is 7. When 3 is added to 1/4 of x, then the answer is 7। आप और भी तरीके से कर सकते हैं। x is equal to 1/4 of 7 when 3 is added to it. Okay, or you can say that on adding x upon 4 and 3 you will get 7. Okay, or you can say 7 is more than x 1/4 of x by 3। बहुत सारे तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। विद दिस योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अभी रहने दीजिए, बाद में हम ट्राई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के बाद फिर ट्राई करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द क्लास वेल। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।